نہیں ہو سکتا. جو اللہ نے قانون بنایا ہے اس کے مطابق ہی زندگی چلے گی. آپ کتنی کوششیں کر لیں, آپ خود باحجاب نہیں ہے, بیٹی سے خواہش کرتی ہیں. آپ خود علم دین نہیں رکھتی, بیٹی سے خواہش رکھتی کہ میری بیٹی مدرسے میں چلی جائے. آپ کی تربیت آپ کے بچوں پہ اثر انداز ہو رہی ہے. آپ کی بیٹیاں, بہت سی ایسی مائیں ہیں جو کہتی ہیں, ہماری بیٹی کہتی ہے ہم مجلس حسین میں نہیں جا سکتے. جب وجہ پوچھی کیوں, کہ ہم سے 1 گھنٹہ بیٹھا نہیں جاتا, ہم سے 1 گھنٹہ بیٹھا نہیں جاتا, ہمیں تو مجلس حسین سمجھ نہیں آتی. اب جو بیٹیاں جن کو مائیں مجبور کر کے ڈانٹ ڈپٹ کے مجلس حسین میں لے آتی ہیں, اب مجلس حسین مجلس ہو تو بچیوں کو سمجھ آئے. جب بچیاں گھر میں گانے رٹ رٹ کر پورے سال گانے سنتی ہیں اور ممبر پر بھی ان کو گانوں کی طرز کے گویے گا گا کے چلے گئے, یہ ممبر رسول نے کوئی دکھا دے, پوری تاریخ سے دعویٰ کر کے کہہ رہی ہوں, کہیں رسول اکرم نے 4 لوگ پیچھے کھڑے کر کے گویوں کی طرح گانے گائے ہوں, یا کہا ہو کہ گانے گا لو تمہیں معافی مل جائے گی. کوئی بات نہیں. مومنات کہتی ہے کوئی بات نہیں باجی, اللہ معاف کر دے گا, اللہ معاف کرے گا. اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے. اللہ معاف کرنے کے لیے اس نے اپنی مخلوق کو کے لیے اہل بیت جیسی ہستیاں بنائی ہیں کہ جن کو وسیلہ بنا کر میری بارگاہ میں. تو عزیزان گرامی سوچئے, اپنی بچیوں کو علم کہاں سے دیں گی؟ ایک ماں جس کے پاس اتنا مال و دولت نہیں تھا کہ وہ بچیوں کو مدرسے میں نہیں بھیج سکی, علم دین حاصل نہیں کروا سکی. ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ مدرسے میں جائے, ضروری نہیں ہے کہ ہر مومنہ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے یا مالی طاقت نہیں ہے کہ وہ رکھے کہ اپنی بچیوں کو مدرسے بھیجے. اب مجلس حسین میں بھی اس کو علم نہیں ملے گا تو بچیوں کا کوئی قصور نہیں ہے. ان قصور ہے تو ان ماؤں کا کہ جو اپنی بچیوں کی تربیت نہیں کر سکی. پھر ان جگہوں پہ بچیوں کو لے کے جاتے ہیں ہم لوگ, ہم کہتے ہیں شادیوں میں لے جانا ہے, رشتہ دار ناراض ہوں گے, محلے والے ناراض ہوں گے. ان کی ناراضگی ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور مجلس میں جس میں ہم دعویٰ کرتے ہیں یہ عبادت کی جگہ ہے, ہم یہاں پر اہل بیت کی ناراضگی آرام سے برداشت کرتے ہیں. مومنات دیکھیے, عبادت کے لیے اللہ نے کہا اگر تم نے نماز پڑھنی ہے تو اس کی کچھ شرائط ہیں. شرائط کیا ہے؟ آپ حالت نجاست میں نہ ہو. شرائط کیا ہے؟ آپ کی جہاں پر بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے وہ جگہ پاک ہو. بولے میرے ساتھ کہ جو شریعت جانتی ہے, جو مائیں بہنیں نماز پڑھتی ہیں, بتائیں حالت نجاست میں نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ کا پردہ پورا نہیں, بال نظر آ رہے ہیں, باریک دوپٹے میں نماز پڑھنی, آپ کی نماز کامل نہیں ہے, نماز پوری نہیں ہے, نماز عبادت نہیں ہے. آپ کہ میں وضو نہیں کرتی, کوئی بات نہیں, اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے, معاف کرے گا. اللہ کیا ہے؟ اللہ نے میں استغفار پڑھ لوں گی, اللہ مجھے معاف کر دے گا. نہیں عزیزان محترم, اپنے خام خیالی آپ کی اپنے ذہنوں سے یہ باتیں نکال دے. اللہ نے شرط بتائی ہے, اگر تو حالت نجاست میں آئے گا تیری نماز قبول نہیں کروں گا. اگر تو کہتی ہے میں وضو کے بغیر نماز پڑھ لوں گی, اللہ کہہ رہے میں نے شرائط عبادت میں سب سے پہلی چیز یہ رکھ دی ہے کہ پاک ہو کر میرے پاس آ, پاک ہو کر میرے پاس آئی ہو. اگر تو نے وضو نہیں کیا اور کہے کہ میری نماز قبول ہو جائے گی, عزیزان محترم اپنے لیے سوچیں قبر میں جا کر کیسے جواب دیں گے. بغیر وضو کے نماز پڑھتی رہی, غسل کا پتہ نہیں, نماز پڑھتی رہی, قرآن کھولتی رہی, پردہ پورا نہیں, نماز قبول نہیں ہے. عزیزان محترم تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین کی عبادت کے لیے جو اللہ نے شرائط بتائی ہیں, جو اہل بیت نے شرائط بتائی ہیں, جو اہل بیت مجلس حسین کرواتے رہے, میں اور آپ نہیں مجلس حسین کرواتے. بے شک اہل بیت کے جتنا بھی دیکھ لیں, امام حسین کی شہادت کے بعد ہر معصوم نے گریہ کیا, ہر معصوم نے امام حسین پر گریہ کیا اور مجلس کروائی ہے. لیکن اس کی کوئی شرائط ہے. ہم جب ایک عبادت نماز قبول نہیں ہو سکتی پھر کیا مجلس حسین عبادت نہیں؟ اگر مجلس حسین کی شرائط پوری نہیں ہے تو یاد رکھیے گا مجلس حسین قبول نہیں ہوگی, مجلس حسین قبول نہیں ہوگی. حق کا ساتھ دے, حق بولنا سیکھے. امام حسین علیہ السلام تنہا مدینے سے نکلے تھے, اتنے صحابی بیٹھے تھے, کوئی اٹھ کر نہیں گیا. ہر ایک نے اپنے مذہب بنا لیا تھا, ہر ایک نے تخلیقی اسلام بنا لیا تھا, اسلام کو بھول گئے تھے. کتنے برس گزرے تھے رسول اکرم کو اس دنیا سے گئے ہوئے, کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا. لیکن لوگ ابھی معصومین کی لڑی چل رہی تھی, لوگ اسلام سے رخ پھیرنا شروع ہو گئے تھے. اور جب اسلام میں شجر کاری دیکھی, حسین ابن علی نے شجر کاری دیکھی, ہر کوئی اپنی مرضی سے آتا ہے, اپنی مرضی کا دین ایجاد کر رہا ہے. کوئی شراب پینے کو جائز قرار دیتا ہے, کوئی ماں بہن کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا ہے. جب حسین ابن علی نے یہ حالت دیکھی, اب چونکہ تعلق تھا حسین کا رسول سے زیادہ, خون رسول دوڑ رہا تھا, رسول کی زبان چوس چوس کر پلنے
वाला हुसैन बर्दाश्त नहीं कर सका और बातिल के खिलाफ उठ उठा। और बातिल के खिलाफ उठ उठा तो क्यों उठे हुसैन? हक का साथ देने के लिए। जानते थे कोई साथ देने वाला नहीं है। जब मौला ने फरमाया कि मैं मदीना छोड़ रहा हूँ, तारीख उठा कर देखें, जो उलमा को सुनती है, जो जाकिरीन को सुनती है, जो हक बयान करते हैं, उन्होंने क्या बयान किया है कि जब रसूल खुदा के ये नवासे मदीना छोड़ रहे थे, मौला ने फरमाया सबको पता था कि मदीना हुसैन छोड़ के जा रहे हैं। मौला ने फरमाया मैं वापस नहीं आऊंगा, आओ अगर मेरी नुसरत के लिए तैयार हो आओ, मैं इमाम मासूम वादा करता हूँ तुम्हारी जन्नत का जामिन हूँ। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मस्जिद नबवी में मेरे नाना ने तारुफ करवाया, नमाज को तूल देकर मेरा तारुफ करवाया, अपने उजरे में आराम कर रहे थे तारुफ करवाया। जब मैं इस दुनिया में हुसैन इब्ने अली आया, मैंने माँ के दूध को हाथ नहीं लगाया, मैंने अपनी जबान से माँ के शीर को नहीं चखा था। जो सबसे पहली मेरी घुट्टी ग़िज़ा थी वो लआब रसूल था। और कई सारी तारीख पढ़ रही थी। आज सुबह जब मैंने किताब को खोला तो वाकई एक दिल को तसल्ली मिल गई, सुकून मिल गया। हुसैन इब्ने अली की ग़िज़ा कई 6 महीने के हुसैन पैदा हुए और का 6 महीने के बाद हुसैन की सबसे पहली ग़िज़ा रसूल का लआब था। और ये नहीं बल्कि यहाँ तक तारीख कह रही है कि इसके बाद भी जब भी रसूल अकरम आते थे तो हुसैन की मुंह के अंदर अपनी जबान दे देते। और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुकम्मल तौर पर सीराब हो जाते थे तो रिसालत वहाब अपनी जबान खींच लेते थे। अब वो हुसैन इब्ने अली कि जिसने लआब रसूल से चक्का हो, जिसकी घुट्टी में ही रसूल का लआब हो, अब सोचिए वो कैसे बातिल का साथ दे सकते थे, वो कैसे बातिल के लिए बैयत कर सकते थे। आज तक कोई बैयत का नाम मिटाया तो हुसैन ने। आज मिंबर से सदाएं आ रही है तो हुसैन इब्ने अली की कुर्बानी का नतीजा है। अगर आज हमारी मस्जिदों से ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं आ रही है तो किसकी कुर्बानी का नतीजा है? हुसैन की कुर्बानी का नतीजा है। अगर हम पर्दा करके आती है तो समझ जाए हुसैन इब्ने अली की कुर्बानी का नतीजा है। अगर आप नमाज फजर के लिए दीदार हो गई तो समझ जाए हुसैन ने नमाज को बचाया है। अगर आपने पर्दा कर लिया, आप रोजे की पाबंद हो गई तो समझ जाए आपकी तरबियत हो गई। ये किसका नतीजा है? मैं और आपने तो कोई इस्लाम के लिए जहमत ही नहीं दी। हमें क्या पता इस्लाम क्या चीज है, हमें क्या पता हक किसे कहते हैं, क्योंकि हमारी घुट्टी में ना इस्लाम शामिल था, हमारी घुट्टी के अंदर ना लाभ रसूल शामिल था। अरे जिसने कुर्बानियां देखते हुए रसूल को देखा था, रसूल को पत्थर लगते देखे, रसूल को लहूलुहान होता हुआ देखा, रसूल की मेहनत देखी, हिजरत का मौका देखा, हर चीज को बर्दाश्त किया। शोबे अबी तालिब में 3 साल रसूल को पत्थर खाते देखे, रसूल को पत्ते खाते हुए देखा, सारी सहूलतों को देखा। अब वो हुसैन कैसे बर्दाश्त करता, हक का साथ कैसे ना देता? हुसैन इब्ने अली से बर्दाश्त ना हुआ कि वो कैसे बातिल का साथ दे। सोचा है कभी? वतन छोड़ना इतना आसान नहीं है अज़ीज़ान मोहतरम। फिर बहनों को साथ ले जाना, बेटियों को साथ ले जाना, जवानों को साथ ले जाना आसान नहीं था। लेकिन हुसैन किसी मकसद के तहत मदीना को छोड़ रहे थे। वो मकसद कौन सा था? वो नमाज को बचाना था। वो मकसद क्या था? औरत का पर्दा बच जाए। वो मकसद क्या था? इस्लाम को कुर्बानी की जरूरत हो गई थी। और जब मदीना से निकले, मौला ने फरमाया मैं जा रहा हूँ, आओ मेरी नुसरत को। तो लोगों ने कहा यब्ना रसूलल्लाह हमारी औलाद छोटी है, यब्ना रसूलल्लाह हमारी औरतें जहाज की इजाजत नहीं दे रही, वो कहती है कि तुम चले जाओगे हम बेवा हो जाएंगी, हमें छोड़कर नहीं जाओ। यब्ना रसूलल्लाह ए रसूल के जिगर गोशा आप ऐसे करें, हमसे चंद तलवारें ले लें, हमसे चंद घोड़े ले लें, हमसे कुछ दिरहम ले लें, हम आपकी मदद के लिए नहीं जा सकते। उस वक्त इमाम हुसैन ने खूबसूरत जुमला कहा कि जो तारीख में वाकई अपनी मिसाल आप है। मौला ने फरमाया ना मैं तुम्हारे दिरहम का मोहताज हूँ, ना तुम्हारे घोड़ों का मोहताज हूँ, ना तुम्हारे नेज़ों का मोहताज हूँ, ना तुम्हारे तलवारों का मोहताज हो। तुम भूल गए हो कि मेरे बाप अली इब्ने अबी तालिब की जुल्फ़िकार अल्लाह ने आसमान से भेजी थी। अरे मैं मासूम का बेटा हूँ और मासूम का बेटा हो। या हुसैन, या हुसैन, या
या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इमाम हुसैन ने क्या फरमाया, तुम भूल गए हो मैं किसका बेटा हूँ? मैं अली इब्न हैदर कर्रार का बेटा हूँ। मेरे अंदर जो खून दौड़ रहा है वो हुसैनी खून दौड़ रहा है, वो अली का खून दौड़ रहा है। शुजाअत मेरे बाप का विरसा, ज़हद और तकवा मेरे बाप का विरसा है। अगर तुम चाहते हो कि तलवारें ले लूं, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। अगर मेरी नुसरत के लिए निकलना चाहते हो ना, मुझे माल और दौलत नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा खून चाहिए, मुझे तुम्हारा खून चाहिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं मदीना वापस नहीं आऊंगा। अगर अब मेरे साथ आना चाहते हो तो आ जाओ। लोगों ने इनकार कर दिया। उठाकर देखे कि जो कूफा के लोग थे जिन्होंने मौला को खत लिखे थे, वो लोग ही यजीद के इब्ने ज़ियाद के माल और दौलत की लालच में आ गए। वो भूल गए कि हम हक से हट रहे हैं, क्योंकि दुनिया ऐसी लज्जत तरीन चीज है कि जो मासूमीन के दौर में जिंदगी करते थे वो लोग भी भूल गए थे, और हम भी इसी तरह दुनिया में इतने मगन हो गए हैं, इतने दुनिया में मशगूल हो गए हैं, हम भूल गए हमने जाना है, हमने जाना है। कभी छोटी सी मिसाल दूंगी, कहा दुबई में 3 दोस्त पाकिस्तान से गए। जब पाकिस्तान से गए, हर कोई कमाने के लिए गया था। जब कमाने के लिए गए, एक दोस्त ने कहा अभी तो इशरत का ऐशो इशरत का मौका है, अभी तो मैं जवान हूँ, जो मिलता था खर्च कर देता था। दूसरा जो दोस्त था उसको जो मिलता था वो अपने घर पाकिस्तान भेजता रहा। जो तीसरा था उसने क्या किया, अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए कुछ बचा के अपने पास रखता रहा और कुछ बचा के अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए पाकिस्तान ट्रांसफर करता रहा। कहा जब दुबई के कुछ अर्सा पहले की बात है कि जब हालात खराब हुए, अब एक दोस्त भी परेशान था जिसने ऐशो इशरत में जिंदगी गुजारी, जिसने कोई जमा नहीं किया था। दूसरा भी परेशान था कि मेरा पास बैंक बैलेंस नहीं है। अब तीसरा खुश था। कहा तुम इतने मुतमईन क्यों नजर आ रहे हो? हम तीनों मिलकर आए थे, हम तो परेशान है, तुम तो मुतमईन नजर आ रहे हो। कहा मैं जानता था कि मैं आया हूँ तो मैंने वापस भी जाना है, इसलिए जमा करता रहा हूँ ताकि जब मुझ पर मुश्किल वक्त आए तो ये मेरी जमा पूंजी काम आए। इसी तरीके से मोमिनात, हम इस दुनिया में आए हैं, हमने जाना भी है। कोई भी ये ना सोचे कि जब अल्लाह के नबी जा सकता है, जब आइमा जैसी हस्तियां जा सकती हैं, तो मैं और आप किस बात की मूली हैं? हम कैसे ये दावा करेंगे कि हम आए हैं अपनी मर्जी से जाएंगे? ना आना हमारे इख्तियार में था और ना जाना हमारे इख्तियार में। सलवात पढ़े बरमात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जब कुछ भी हमारे इख्तियार में नहीं, ये चंद दिन की जिंदगी, बल्कि क्यों ना कह दूं कि ये चंद दिन के मुख्तसर मोहलत अल्लाह ने दिए हमें कि देखें हमने इस दुनिया में क्या करना है, हमने इस दुनिया से क्या लेके जाना है। ऐसा न हो कि कब्र में जब फरिश्ते आकर हमारे कंधे हिलाएं और जब आपने जिन्होंने तलकीन सुनी होगी नमाज जनाजा के बाद, जब एक मुर्दे को कब्र में लिटाया जाता है, जो मोमिनात साहिब इल्म क्या है, उनकी तलकीन पड़ी जाती है। अब वो बंदा जो सारी जिंदगी साथ रहता है, लेकिन जब कब्र में तलकीन का वक्त आता है कोई उतरता नहीं है, डरते हैं। चाहे कोई दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कहते हैं हमसे कब्र में नहीं उतरा जाता। भाई हमें कब्र का खौफ आ रहा है। अब किसको उतारते हैं? आलिम दीन को। उनको पता है कि आलिम दीन जाएगा, आलिम दीन को पता है मैंने दुनिया के लिए काम नहीं करना, मैंने अल्लाह के आगे जवाब देना है। उसको पता है मैंने माले इमाम खाया है, उसको पता है कि दुनिया 4 दिन की है। आराम से बेखौफ खतर एक आलिम दीन, वो नमाज जनाजा पढ़ाने वाला, वो मैयत की तलकीन करने के लिए कब्र में जब उतरता है तो उसको क्या कहता है? कभी सुने हैं वो जुमले जिसने तलकीन पढ़ी हो? इस्मा इफहम, यानी एक मुर्दे के कंधे को हिलाकर कहा जाता है इस्मा, गौर से सुन, इफहम और समझ। क्या समझ? अब वो तलकीन पढ़ने वाला कौन क्या बात समझा रहा है? जिसने सारी जिंदगी नहीं समझा, जिसने सारी जिंदगी कुरान खोला नहीं। अब कुरान एक मिसाल देती हूँ छोटी सी। ये मोबाइल पे मैसेज आए, कितने भी मसरूफ हो, जैसे ही टून बजती है फौरन उठाते हैं, देखते हैं किसका मैसेज आया, कौन से दोस्त ने मैसेज किया, किस रिश्तेदार ने मैसेज किया, किस चाहने वाले ने मैसेज किया। फौरन जवाब देने के लिए लपकते हैं, आटे वाले हाथ छोड़ के, घर के काम काज छोड़कर। अल्लाह ने कुरान मैसेज भेजा था कि बंदो ये कुरान खोल के पढ़ लेना, लेकिन खोला नहीं। अब वो मौलवी, अब वो आलम दीन तलकीन पढ़ रहा है इस्मा इफहम, चाहे कोई बंदा है मोमिन मरे, चाहे कोई मोमिना इस दुनिया से जाए। अब आलम दीन कह रहा है इस्मा इफहम, जिसने सारी जिंदगी अहले बैत को
चलो मैं तलकीन पढ़ ली, अब उसको कौन समझा रहा है? जो सारी जिंदगी सोया रहा, जिसके पास टाइम नहीं कुरान खोलने के लिए, जिसके लिए पर्दा करने के लिए टाइम नहीं, जिसको अपनी खूबसूरती संवारने से टाइम नहीं है, अब उसको ये नमाज जनाजा के बाद तलकीन पढ़ते हुए आलिम दीन कह रहा है कि यानी सुन और समझ। क्या समझ? इसके आगे तलकीन चल रही है, क्या समझ? समझ कि तेरा अल्लाह कौन है, मन रब्बों का, मन इमामों का, मन किताबों का, मन वलियों का, मन नबियों का। बता, अब सारी जिंदगी जिसने कुरान खुदा के आगे सजदा ही नहीं किया, अब वो कैसे तलकीन क्या की जाती है? यानी कि मुर्दे को तलकीन करने से मतलब क्या है कि अब तेरी जिंदगी का सफर खत्म हो गया, अब तुम्हें कब्र में जाना है, फरिश्ते आएंगे फौरन और तेरे से सवाल करेंगे, बता मन रब्बों का, तेरा रब कौन है? सारी जिंदगी नमाज ना पढ़ने वाले मैं और अब जब फरिश्ते सवाल करेंगे मन रब्बों का, बता तेरा रब कौन है, तो कहां से जवाब आएगा? चाहे तलकीने एक नहीं 10 पढ़े, 100 पढ़े, लाख पढ़े, कोई समझ नहीं आएगी। उस वक्त जब फरिश्ते पूछे मन किताबों का, बता तेरी किताब कौन सी है? अब हमें जिसने कुरान को खोला नहीं, जिनकी बेटी कुरान से नाफहम है, जिसको पता नहीं कुरान की तिलावत का सवाब क्या है, इसका अजर क्या है, हमने तो रमजान के लिए कुरान को रख दिया, या शबीनों के लिए कुरान को रख दिया, या अपनी बेटियों को जहेज में देने के लिए कुरान रख दिया। अब समझिए तो सही, जिस बेटी ने कुरान को खोला नहीं, अब वो कब्र में कैसे जवाब देंगे? आपको नहीं, मैं अपने नफ्स को भी मुतनब्बे करते हुए कह रही हूँ। फिर उसके बाद सवाल किए जाएंगे, जब जवाब नहीं आएंगे मोमिनात समझिए ये मुख्तसर दौर है। बहुत सी मोमिनात होंगी जो पिछले साल इस फर्श पर बैठती होंगी, लेकिन आज नहीं। हमारी भी चंद दिन की जिंदगी आज है, कल नहीं है। ये जो वबा फैल रही है, जो अमराज आ गए हैं, जिनके नाम अजीब, जिनका ला इलाज मर्ज कहा गया, ऐसे मर्ज आ गए हैं, तो बताएं मोमिनात, किसी को नहीं पता कि हम यहाँ से उठकर जाएंगे भी नहीं। एक लम्हे फिक्रिया है इस मजलिस हुसैन में, अपने ज़मीर को मुतनब्बे करते हुए और आपके लिए एक लम्हे फिक्रिया छोड़ रही हूँ। जरूर सोचें कि हमने यहाँ से जाना है, हमने यहाँ से जाना है तो क्या लेकर जाना है, अहले बैत को क्या मुंह दिखाना है, अल्लाह की बारगाह में कैसे जाना है। मजलिस हुसैन से हमने क्या दर्स हासिल किया है, मजलिस हुसैन से हमने कुछ लेकर उठना है, समझ कर उठना है, ताकि वो तख्लीकी इस्लाम के जो लोगों ने घरों में बना लिया है, हमने वो इस्लाम ईजाद नहीं करना, हमने उस इस्लाम के अमल पैरा होना है कि जो रसूल ने इस्लाम दिया था, जो अहले बैत ने हमें इस्लाम सिखाया। बहुत करोड़ों अरब लोग हैं दुनिया में, लेकिन अज़ादारी उनकी किस्मत में नहीं। इमाम अली से ना आशना है, हजरत फातिमा ज़हरा को जानते नहीं है, अहले बैत के दरवाजे को मानते नहीं है। कितनी करोड़, 14 करोड़ अरब दुनिया है, जिनमें से 5 करोड़ 5 अरब कर ले दुनिया होगी जो शिया है। तो क्या है ये अज़ादारी? इमाम हुसैन ने हमें नेमत दी है, ये नेमत दी है, इसको समझें। और नेमत को जितना संभाल के रखेंगे, जितना शुक्राना अदा करेंगे, अल्लाह नेमतों में इजाफा करता चला जाएगा। क्योंकि कुरान कह रहा है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम लअज़ाबी शदीद, कि ऐ मेरे बंदो तुम रब की परवरदिगार की नेमतों का शुक्र अदा करो, मैं तुम्हारी नेमत में इजाफा करता चला जाऊंगा। शुक्र लिया तो हमने कहाँ से सीखना है? अहले बैत के दरवाजे से। रसूल अकरम ने शुक्र किया, अल्लाह ने अली अता किया, इमाम अली ने शुक्र अदा किया, अल्लाह ने फातिमा जैसी बीवी अता करती, हजरत फातिमा तो ज़हरा ने शुक्र अदा किया, अल्लाह ने हसनैन जैसी नेमत दे दी, इमाम हुसैन ने शुक्र अदा किया, अल्लाह ने सैयद सज्जाद अता किए, सैयद सज्जाद ने शुक्र अदा किया, अल्लाह ने मोहम्मद बाकिर अता कर दिए, मोहम्मद बाकिर सज्जा रेड हो गए तो अल्लाह ने जाफर सादिक अता कर दिए, जाफर सादिक ने सज्जा शुक्र बजा लाए, अल्लाह ने इमाम मूसा काजिम अता कर दिए, और जब मूसा काजिम ने सज्जा किया, अली इब्ने मूसा रजा अता कर दिए, मूसा रजा ने शुक्राना किया, अल्लाह ने मोहम्मद जवाद तकी अता किए, जवाद तकी ने जब शुक्राना किया, अल्लाह ने अली नकी दे दिए, और जब अली नकी मिले उन्होंने अल्लाह की बारगाह में जब शुक्र किया, अल्लाह ने हसन अस्करी जैसी नेमत दे दी, और हसन अस्करी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। रहती दुनिया तक के लिए अल्लाह ने मिसाल काम कर दी कि मेरे बैत मुझे झुकते रहे, मैं उनकी नेमत में इजाफा करता रहा। आज दुनिया जोर लगा रही है और कह रही क़यामत आने वाली है। मैं कहती हूँ तू साइंसदान हो, अपनी इल्म अपने पास रख, इजाद करने वाले इंजीनियर अपना इल्म पास रखे। मैं कहती हूँ जब तक हमारा 12वां इमाम नहीं आएगा उस वक्त तक क़यामत आ नहीं सकती।
والے چلے گئے, اللہ نے ان کا ذکر, ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا. کہو قیامت کب آئے گی؟ یاد رکھنا اپنے بچے کے ذہن میں, اپنی ماں اپنے بچوں کو جو گھٹی دے اور اس کے ذہن میں بھی ڈالے قیامت آ نہیں سکتی, چاہے تیرا استاد تجھے کتنی پٹیاں پڑھائے, تجھے انجینئر کا علم دے دے, سائنسدان کتنا کہتا رہے کہ اب یہ ستارہ ٹوٹ گیا, اب کرونا آ گیا, اب ملیریا آ گیا, اب ٹائیفائڈ آ گیا, اب کینسر آ گیا, اب ایڈس آ گیا, کہتے رہو دنیا ختم ہو رہی ہے, لیکن ہم نہیں مانتے. ہم شیعہ نے حیدر کرار کے پاس معصوم کی حدیث موجود ہے جنہوں نے شکرانہ ادا کیا. اللہ نے اہل بیت کے گھرانے میں کیا کر دیا, حق و باطل کو جدا کرنے کے لیے امام زمانہ کا وجود رکھ دیا. ہم کہتے ہیں قیامت آ نہیں سکتی, جتنے بھی کرونا آتے کہ قیامت اس وقت آئے گی جب ہمارے مہدی برحق آئیں گے. بے شک بے شک. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا علی, یا علی, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. عزیزان گرامی, دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ انشاءاللہ جو علم ہے ناقص علم اس سے کوشش کرتی ہوں کہ مجھ سے کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ سیکھ کر جائے تاکہ یہاں پر ممبر کا حق ادا کر سکوں. یہ بھی نہیں کہتی کہ پورا صحیح معنی میں ممبر کا حق ادا کر سکتی ہوں, پھر بھی جو مختصر ڈیوٹی, اور واقعی یہ کرم ہے امام حسین کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ چونکہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ کی زیارت مجھے خدا نے پہلی دفعہ نصیب فرمائی ہے. آپ کے علاقے میں چونکہ میں نہیں آئی ہوں, آپ لوگوں کو نہیں جانتی, چند چہرے مجھ سے آشنا ہے یا جن کو میں جانتی ہوں. کوشش کرتی ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے اپنے جد کے مسائل کو صحیح طریقے سے بیان کروں اور اس ممبر کا حق ادا کر سکوں. امام حسین علیہ السلام پر مومنات صرف میں اور آپ نہیں رو رہے. کل جب محرم کا چاند نظر آتا ہے نا تو اللہ جبرائیل کو حکم دیتا ہے, جبرائیل حسین کا خون بھرا کرتا جنت سے اٹھا اور اس کو لے جا تمام ملائکہ کے اور تمام زمین و آسمان پر گھما. کہا وہ جبرائیل حسین کا کرتا اٹھاتے ہیں, تمام ملائکہ کو دکھاتے ہیں, تمام نبیوں کو اس کی زیارت کرواتے ہیں. آسمان کی جو سرخی ہے نا جو شام کے وقت آتی ہے, مومنہ تو میں نے خود کتاب میں پڑھا ہے اور علماء حقہ سے سنا ہے